آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ حکومت و انتظامیہ اور صحافی ایک گاڑی کے دو پہیے۔ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات کو ضرورت مندوں تک پہنچانے میں صحافیوں کا کردار اہم، کہا ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے۔ شہر کے صحافیوں کا ضلع کلکٹر کے ہاتھوں کیا گیا شایان شان استقبال۔ تعمیری کام کرنے والے مزدوروں کے رجسٹریشن اور رینیول کے لیے شروع کیے گئے آن لائن سینٹرز، مگر ایک دن میں صرف 200 رجسٹریشن کا مقرر کیا گیا کوٹا۔ اندراجات کے لیے مزدوروں کو دقتوں کا سامنا، رجسٹریشن کی رفتار بڑھانے ٹھوس اقدامات کی اپیل۔ پولیس انتظامیہ کی لاکھ کاؤنسلنگ و کڑے رخ کے باوجود شہر میں زور و شور سے نائلون مانجھوں کی خرید و فروخت ہے جاری۔ پھر ایک بے احاطہ خاتون آئی ممنوعہ مانجھے کی زد میں، گلا کٹ جانے کے سبب لگانے پڑے 40 ٹانکے۔ شہریان پر خوف طاری، توجہ کا مطالبہ۔ اور شہر میں پیش آئی 71 چوری کی وارداتوں میں ملزمین کو گرفتار کرنے میں پولیس کو ملی کامیابی۔ 35 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مسروقہ سامان بھی کیا گیا برآمد۔ پولیس کمشنر پروین پوار کے ہاتھوں ریکورڈ اشیاء متعلقہ مالکان کے کی گئی سپرد۔ سامان واپس مل جانے کی خوشی میں متعلقہ شہریان کی آنکھوں سے ٹپک پڑے آنسو۔ خبریں تفصیل سے۔ معاشرے کے دبے کچلے افراد کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات ان تک پہنچانا ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ ان اسکیمات سے متعلق عوام کو معلومات فراہم کرنے میں صحافی حضرات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ضلع انتظامیہ اور صحافی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے کیا۔ وہ گزشتہ روز درپن دن کے موقع پر صحافیوں کے استقبال کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے مخاطب تھے۔ واضح رہے کہ درپن دن کی مناسبت سے ایک تقریب گزشتہ روز DPDC کے میٹنگ ہال میں منعقد کی گئی۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں کوآپ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر مادھو ساورگاوے، ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر دیویندر کٹکے، RDC ونود کھروڑکر، ڈپٹی کلکٹر اماکانت پاردھی، ڈسٹرکٹ ایگریکلچر بینک کے مینیجر منگیش کیدار، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ڈاکٹر ملند دوسانے، تحصیلدار رمیش منلوڈ، انفارمیشن آفیسر ڈاکٹر میرا ڈھاس اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر گنیش پھندے بھی شریک تھے۔ پروگرام کے آغاز پر آچاریہ بال شاستری جامبھیکر کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بعد ازاں اس پروگرام میں شریک سبھی صحافیوں کو مومنٹو اور گلاب پیش کر کے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے کہا کہ آچاریہ بال شاستری جامبھیکر نے جس وقت صحافت کی وہ تحریک آزادی کے بعد کا دور تھا، اس میں اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت کے مسائل الگ تھے، آج کے مسائل الگ ہیں۔ اس کے باوجود صحافیوں کی ذمہ داریاں نہیں بدلی ہیں۔ اخلاقی قدریں تیزی سے گھٹنے لگی ہیں اور انسان ہماری تہذیب و ثقافت سے دور ہونے لگا ہے۔ دختر کشی، حمل میں پل رہے بچے کی جنس کی شناخت، منشیات کا استعمال، ڈومیسٹک وائلنس، بوڑھے ماں باپ کو ان کی اولاد کی جانب سے گھروں سے نکال دینا جیسے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، جن پر قابو پانے کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے معاشرے کی کونسلنگ کرنا ضروری ہے اور یہ ذمہ داری صحافی حضرات نبھائیں۔ یہ مشورہ بھی کلکٹر دلیپ سوامی نے صحافیوں کو دیا، جبکہ ڈاکٹر مادھو ساورگاوے نے کہا کہ صحافیوں کو درپیش مسائل حل کرنے حکومت و انتظامیہ کی جانب سے تشکیل کردہ کمیٹیاں اپنے طور پر کوششیں کرتی ہیں، مگر اس کے لیے ضلع انتظامیہ اور صحافیوں کے درمیان تال میل ہونا ضروری ہے اور صحافی انتظامیہ کا ہر معاملے میں تعاون کرتے ہیں۔ بالخصوص معاشرے میں خوشگوار تبدیلیاں لانے کے لیے اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے عوامی بیداری پروگرام بھی چلائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر سینئر صحافی سدھارتھ گودامے اور عبد القدیر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کا تعارف ڈاکٹر ملند ڈوسانے نے پیش کیا۔ نظامت کے فرائض کانچن جوشی نے ادا کیے، جبکہ ڈاکٹر میرا ڈھاس نے شکریہ کی رسم ادا کی۔ पत्रकार सुद्धा समाजामध्ये वावरणारा आणि समाजासाठी समाजाच्या प्रगतीसाठी जिल्ह्याच्या देशाच्या राज्याच्या विकासासाठी झटणारा एक व्यक्ती आहे। आणि एका बाजूला आपण
चौथा स्तंभ म्हणत असताना त्या चौथा स्तंभाच्या बाबतीमध्ये शासनाने काही GR काढले, काही परिपत्रक काढले, काही समाजाने काय काढले, काही समाज सेवाभावी संस्थांनी काय काढले, त्याच्यापर्यंत जाऊनही आपल्याला आणखी बऱ्याच गोष्टी याच्यामध्ये करता येऊ शकतात. या दिवसाच्या माध्यमातून त्याचे प्लस मायनस पॉईंट काय, क्रॉस कॉन्स काय आहे, वाईट काय घडलेलं आहे, त्याची सुधारणा कसं करता येईल, भविष्यात चांगलं कसं करता येईल, आपल्या लेखणीमध्ये, आपल्या वर्तनामध्ये, आपल्या बोलण्यामध्ये, आपल्या अग्रेसिव्हपणामध्ये, आपल्या सगळ्या एकंदरीत आपल्याला पॉझिटिव्ह बदल कसा करता येईल, या दृष्टिकोनातून सुद्धा आपल्याला या दिवसाच्या निमित्तानं जर चिंतन आणि विचारमंथन करता आलं तर मला वाटतं निश्चितपणे आपल्या जिल्ह्याच्या, आपल्या राज्याच्या विकासासाठी मोठा हातभार या ठिकाणी लागणार आहे. तुम्ही आम्ही शेवटी समाजासाठी झटणारे, समाजासाठी काम करणारे लोक आहोत. तुमचाही तोच उद्देश आहे की प्रशासन प्रामाणिकपणे चालला पाहिजे, गतिमान विकास झाला पाहिजे, लोकांच्या समस्या निवळल्या पाहिजेत. तोच उद्देश आमचा सुद्धा आहे. जिल्ह्याचा प्रमुख म्हणून तोच उद्देश समोर ठेवून या सगळ्या छोट्या मोठ्या गोष्टीमध्ये आपण लक्ष घातलेलं आहे. ते आपण त्या पद्धतीने काम करण्याचं निश्चित धोरण आखलेलं आहे. तुम्ही निश्चितपणे आम्हाला सहकार्य कराल आणि चांगल्या पद्धतीचं एक वातावरण आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण निर्माण करूया. पत्रकार दिनाच्या निमित्तानं अनेक सोहळे होतात, कार्यक्रम होतात, सन्मान मिळतो, पण जिल्ह्याचे प्रमुख आणि एकत्र बोलून सगळ्या पत्रकारांचा सन्मान करणं ही एक मोठी बाब आहे. असाच समन्वय जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय आणि पत्रकार यांच्यामध्ये असावा, असा एक माझाही आग्रह आहे, जेणेकरून समाजातल्या चांगल्या गोष्टी या समाजासमोर येतील आणि एक चांगला समाज घडवण्यासाठी प्रशासनासोबत पत्रकारांची भूमिका महत्वाची राहील, असं माझं एक प्रामाणिक मत आहे. रोशन गेट और अतराफ की बस्तियों में भी न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत नई पाइपलाइन डलवाई जाए. इसी तरह से जोन नंबर 3 दफ्तर के अहाते में मुजव्वज़ा पानी की टाकी का रुका हुआ काम भी फौरी शुरू करवाया जाए. इस मतालबे पर साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद ख़ान की रहनुमाई में इलाक़े के साकिनान ने अलामती हड़ताल की. मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत शहर भर में नए पाइप डाले जा रहे हैं, मगर मज़कूरा एजेंसी ने रोशन गेट और उसके अतराफ की बस्तियों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है और अब तक यहाँ किसी भी महल्ले या गली में पाइपलाइन नहीं डाली गई, जबकि यहाँ के साकिनान को पानी हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं. यहाँ डाली गई पाइपलाइन पुरानी हो जाने के सबब जगह जगह से फूट गई है, जिससे ड्रेनेज का गलीज पानी लाइन में दाखिल होकर जब भी सप्लाई का दिन होता है नलों के जरिए ड्रेनेज आमेज बदबूदार पानी आने लगा है, जिसके इस्तेमाल से इन लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है और साकिनान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं. लिहाजा न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत यहाँ भी फौरी तौर पर पाइपलाइन डलवाई जाए. इसी तरह इस स्कीम के तहत शहर में नई 52 पानी की टाकियाँ तामीर करने का मंसूबा है, जिसके तहत रोशन गेट सूदगिरनी पर और सेंट्रल नाके की कदीम इमारत जहां इन दिनों जोन ऑफिस है उसके अहाते में नई टाकियां बनाने का मंसूबा है, जिसके तहत जोन दफ्तर के अहाते में पानी की टाकी की तामीर के लिए खुदाई भी की गई, मगर नामालूम वजूहात से इसका तामीरी काम बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और इस ज़मन में लोगों ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच की जानिब से मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को पानी की टाकी का तामीरी काम फौरी शुरू करने से मुताल्लिक़ हिदायत भी दी गई. इसके बावजूद MJP के ज़िम्मेदारान ने कोर्ट के अहकामात को भी कचरे की टोकरी में डाल दिया है और 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी इस ज़मन में कोई पेशरफ्त नहीं की गई. लिहाजा साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद ख़ान की रहनुमाई में अवामी नुमाइंदों और इलाके के साकिनान ने जोन नंबर 3 के अहाते में मुजव्वज़ा पानी की टाकी से करीब अलामती हड़ताल की है और इंतबाह दिया कि अगर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई न की गई तो वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा दाखिल करेंगे. मुजाहिरीन में साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद ख़ान के अलावा फ़ज़लुल्लाह ख़ान, सिद्दीक़ी नईम सुल्ताना, शमशाद बेगम, वसंत देशमुख, शेख मुनाफ, इंजीनियर रमज़ानी ख़ान, मोहसिना बिल्कीस, इसहाक़ अंडेवाला, मोहम्मद ज़ाकिर और शेख निसार व दीगर शामिल थे. आज हम सब लोग जो है जोन नंबर 3 के ऑफिस एक्ट्रा नाका के ऊपर आए हैं. पानी की टाकी के 2 प्रस्ताव यहाँ मंजूर हुए थे 2020-21 में. अपने सीधे जानिब देखिए टाकी जो खुद के पड़ी है 4 साल से, अभी तक इन्होंने काम शुरू किए नहीं. और इस एरिया के अंदर जो महल्ले है जैसा किरारपुरा है, शरीफ कॉलोनी है, रोशन गेट है, बाजीपुरा है, संजय नगर है,
ये जितना बड़ा इलाका है इसके अंदर जो है 8 से 10 दिन कभी 12 दिन तक पानी आता है और बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। इसी वजह से हमारे साथ में जो खड़े बाकी नगर सेवक जो है, हमारे शमशाद बाजी माजी नगर सेवक जो है, तो नईमा बाजी माजी नगर सेविका, मैं मोहसिन अहमद माजी नगर सेवक, फजल भाई माजी नगर सेवक, वसंत देशमुख साहब माजी नगर सेवक, मोहसिन बाजी के फर्जंद जो है मोहसिन बाजी माजी नगर सेवक, और तमाम साथी जाकिर भाई और दूसरे साथी जो है हमारे पास, ये सब रात दिन इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि ये पानी के मसला हल हो जाना। 15 से 20 मिनट गंदा पानी आ रहा है, आपने कहीं न्यूज़ पब्लिश करे, आप जो है तो मदद करें। और अब जब तक ये पानी की टाकियाँ नहीं बनेंगी, नई पाइपलाइन नहीं बनेंगी इस एरिया के अंदर, तो ये लोगों को पानी नहीं मिलेगा। सर की जितनी टाकियाँ हैं वो तकरीबन तैयार हो गई है, अब हैंडओवर होने वाली है कारपोरेशन को। और हम बार बार निवेदन दे रहे हैं, बम्बई हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये देखिए आपके सामने है, 1 साल हो गया है हमारी याचिका पे कि काम शुरू करो। अभी तक इन्होंने काम शुरू नहीं किया, टाकी का पानी की लाइन डालने का काम शुरू नहीं करे। इसके लिए एक दिन का लक्ष्य उपोषण के लिए हम यहाँ बैठे थे और जो है तो हमने ये मांग करें, अगर ये काम जल्द नहीं शुरू करे तो बेमुद्दत जो है तो उपोषण के अलावा हाई कोर्ट के अंदर फिर से इन्होंने इसकी अमान्य किए करके हाई कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ जनहित याचिका और दाखिल की जाएंगी। और हम आपसे आज ये दरख्वास्त करते हैं सब मिलके कि प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात पे अमल किया जाता है। आप ये बात सरकार तक, शासन तक, महानगर पालिका जिम्मेदार और आमदार खासदार यहाँ के और मंत्रियों के पास ये बात पहुँचाइए कि उनके मतदार संघ के जो लोग हैं वो पानी के लिए बहुत तकलीफ जा रहे हैं और इस तरफ पहली फुर्सत में वो देखें और ये पानी की समस्या को कायम का दूर करें और टाकी बनाएं और पाइपलाइन डालें। इसके लिए तो कंसल गुत्तेदार और कंसल जो है एजेंसी को जल्दी से तातड़ीन काम शुरू करना, इस तरह से जो है आदेश पारित करें, ये हमारी आपके जरिए से विनती है। कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से पहली खातून मुअल्लिमा फातिमा शेख का यौम पैदाइश जोश व खरोश से मनाया गया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। यार है कि छूत अछूत के तारीकी और जहालत के दौर में एक आम से घराने से उठकर समाज में इल्म की रोशनी फैलाने और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम को आम करने के लिए आजहानी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर कारहाय नुमायाँ अंजाम देने वाली मुस्लिम समाज की अव्वलीन मुअल्लिमा फातिमा शेख, जिन्होंने भिड़ेवाड़े में महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले को रिहाइश और स्कूल के लिए पुणे जैसे मकाम पर जगह फराहम की थी, ऐसी नामवर हस्ती फातिमा शेख को उनके यौम पैदाइश पर शहर कांग्रेस के अक़लियती सेल की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस तक़रीब के मौके पर पार्टी के अहदेदारान में इब्राहिम पठान, इकबाल सिंह गिल, आकिफ रज़वी, अनीस पटेल, संतोष भिंगारे, मंजू लोखंडे, अमीर रफ़ीक ख़ान व दीगर कारकुनान शरीक थे। फातिमा शेख के यौम पैदाइश के दिन आज यौम पैदाइश दिन मनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सावित्रीबाई फुले की उन्होंने को टीचर होने का मान मिला है और उनके घर में यहाँ महाराष्ट्र का जो हमारे महात्मा फुले साहब की जो बीवी है सावित्रीबाई फुले, इनकी शिक्षिका बोल के फातिमा शेख को मान मिला है और उसने उनको पढ़ाया है। उनका आज यौम दिन और जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे माइनॉरिटी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, माइनॉरिटी कांग्रेस के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष और हमारे रज़वी साहब, इकबाल गिल साहब, रवि लोखंडे, मिसेस लोखंडे और पूरे कार्यकर्ते और हमारे शेख अनीस सर्किट औरंगाबाद शहर के और पूरे कार्यकर्ते हम जो आज जो फातिमा शेख का जन्मदिन मना रहे हैं। तामीराती काम करने वाले मजदूरों के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात उन तक पहुँचाने के लिए उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने की रफ्तार नहायत सुस्त होने के सबब उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। ज़िला कामगार मंडल इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ ताल्लुक़ों में रहने वाले तामीराती कामों के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए ताल्लुक़ा वाइज ऑनलाइन सेंटर शुरू कर रखे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के इस नए तरीके से उन्हें अपने नामों का इंदराज करवाने में मुश्किलात का सामना है और इसमें उनका वक्त भी बहुत ज़ाय हो रहा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन सेंटर पर मज़कूरा मजदूरों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। शहर के आनंद प्लाजा में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किया गया है और इस सेंटर पर सैकड़ों मर्द व ख़वातीन अपने नामों
कामों के इंदराज करवाने कतार में सुबह से शाम तक खड़े रहने पर मजबूर हैं। जल्द नंबर आ जाने की आस में ये मजदूर रात 2 बजे से कड़ाके की सर्दी में भी यहाँ जमा होने लगे हैं और दिन भर में सिर्फ 200 रजिस्ट्रेशन की हद मुकर्रर किए जाने के सबब बकिया मजदूरों को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। अहम बात तो यह है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपनी रोजी रोटी छोड़कर भूखे प्यासे अपने मासूम बच्चों के साथ ये लोग यहाँ आते हैं, लेकिन न तो यहाँ खाने पीने का कोई इंतजाम है और न ही दीगर कोई सहूलत फराहम करवाई गई है। उन लोगों का जिला कामगार मंडल से मुतालबा है कि वो इस जानिब तवज्जो देकर उनके रजिस्ट्रेशन जल्द करवाने का कोई इंतजाम करवाएं। ज़िला भर में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की पैदाइश की शरह नहायत घट गई है, जो एक संगीन मसला है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे के जिन्स की शनाख्त करना कानूनन जुर्म है। इसके बावजूद मफाद परस्त अफराद चलती कार, ट्रक और ट्रैक्टर्स में ये काम कर रहे हैं। लिहाजा उन पर शिकंजा कसने के लिए अवाम इंतज़ामिया से ताउन करें और ऐसी मालूमात ज़िला कलेक्टर ऑफिस को दें। ये अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की है। नमस्कार, मी दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर बोलतोय। एक अत्यंत महत्त्वाच्या व नाजूक विषयाची संदर्भात आपणांना विनम्र आवाहन करण्यासाठी मी आपल्या समक्ष आलेलो आहे। आपल्या जिल्ह्यामध्ये मुलींच्या जन्माचं प्रमाण सातत्यानं कमी होत आहे आणि अतिशय चिंतेची बाब ही आहे की हे असमानता जी आहे ती उद्या भविष्यामध्ये सामाजिक प्रश्न निर्माण करणारी आहे। त्यामुळं गर्भलिंग तपासणी ही जे कायद्यान्वये बंदी घातलेली आहे, PCPNDT कायद्याच्या अंतर्गत अशा पद्धतीनं गर्भलिंग तपासणी करणे हे कायद्यान्वये गुन्हा आहे आणि त्यामध्ये अशा प्रकारची तपासणी केल्याचं निदर्शनास आल्यास त्यांना कैदेची शिक्षा होऊ शकते। सद्यस्थितीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये काही असामाजिक संघटना किंवा असामाजिक व्यक्ती यांच्याकडून चोरून छपून ट्रॅक्टरमध्ये, ट्रकमध्ये किंवा ॲम्ब्युलन्समध्ये गर्भलिंग तपासणी करत असल्याची प्राथमिक माहिती प्रशासनाला मिळालेली आहे। या व्हिडिओद्वारे मी समस्त नागरिकांना विनम्र आवाहन करतो की आपणाला जर अशा पद्धतीने कोणत्या ठिकाणी किंवा गोपनीय ठिकाणी अशा पद्धतीनं गर्भलिंग तपासणी होत असल्याचं निदर्शनास आल्यास एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधावा किंवा जिल्ह्यातील प्रशासनातील कुठल्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपण याबद्दलची माहिती दिली तर आपलं नाव गोपनीय राखलं जाईल आणि त्या घटनेची सत्यता पडताळल्यानंतर आपल्याला रोख स्वरूपामध्ये इनाम सुद्धा, पुरस्कार सुद्धा दिला जाईल आणि आपलं नाव गोपनीय सुद्धा ठेवलं जाईल याची खात्री आम्ही बाळगलेली आहे। त्यामुळे आपण निश्चिंतपणे अशा असामाजिक प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी समोर या आणि टोल फ्री क्रमांक 1800233475 1800। रास्ता दुरुस्ती के मुतालबे पर जालना शहर के साकिनान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया और इंतबाह दिया कि अगर फौरी रास्तों का तामीरी काम शुरू न किया गया तो अवामी तहरीक चलाई जाएगी। वाज़ेह हो कि जालना में मसरूफ़ तरीन रास्ते पंचमुखी महादेवता, पानी दरवाज़ा, राजमहल टाकीज़ और दरगाह बेस, ये रास्ता एक अरसे से ख़राब हाल और शिकस्ता हालत में है। इस रास्ते के रुके पड़े काम को फौरी मुकम्मल करके शहरियान को राहत देने का मुतालबा करते हुए इन इलाक़ों के साकिनान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उन्हें पेश किया है। यहाँ रहे कि इस रास्ते के रुके पड़े काम के सबब यहाँ शदीद धूल धपेड़े का राज है, जो साकिनान की सेहत आम्मा को शदीद मुतासिर कर रहा है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग सांस की तकलीफ़ों में मुब्तला होने लगे हैं। इस रास्ते पर बड़े पैमाने पर गैर मजाज कब्ज़े भी हो चुके हैं, उन्हें हटाने का भी मुतालबा शहरियान ने किया है। निज इंतबाह दिया है कि जल्द अज जल्द काम न किया गया तो जमहूरी तर्ज पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस मेमोरेंडम पर कई शहरियान और साकिनान के दस्तखत सब्त हैं। मैं राजमहल टॉकीज परिसर का कायम स्वरूपी रहने वाला नागरिक और मेरे साथ में रहना, हम सब कायम स्वरूपी वहीं के है, लेकिन हमारे रोड की इतनी दुर्व्यवस्था हुई है अभी, उसके लिए हम आज महानगर पालिका में आयुक्त साहब को
निवेदन देने को आए थे, लेकिन आयुक्त साहब हमारे को नहीं मिले, तो हमने माननीय राजपूत मैडम इनको निवेदन दिया है। अगर मैडम से रिक्वेस्ट किए कि जल्द से जल्द हमारे काम को मार्गे लगाए, अगर ये काम मार्गे नहीं लगा तो हम इसके स्वरूप में तीव्र आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। और ये आंदोलन में अगर कुछ होता है, नुकसान होता है, कुछ होता है, तो इसका जवाबदार सिर्फ महानगर पालिका प्रशासन रहेगा। महाराष्ट्र प्राइमरी स्कूल वालुज में सोसाइटी के बानी सदर नबी पटेल की रहनुमाई में स्कूली तलबा की तिब्बी जांच के लिए एक कैंप मुनक़िद किया गया। वाज़ेह रहे कि नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत तलबा की तिब्बी जांच के लिए तालीमी इदारों में मेडिकल कैंप मुनक़िद किए जाते हैं। इस प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र प्राइमरी स्कूल वालुज में एक कैंप गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किया गया, जहां तलबा का वज़न, उनकी ऊंचाई, नाखूनों की नशोनुमा, कान, नाक और गले की मुख्तलिफ बीमारियों से मुतालिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संतोष राठौड़, डॉक्टर सुनीता चौहान, डॉक्टर शालिनी मुंडे और नर्स प्रियंका राठौड़ की रहनुमाई में तिब्बी मायना किया गया। इसी तरह तलबा को हिफ्ज़ान सेहत, खुद की सफाई और अतराफ़ के माहौल को साफ़ सुथरा रखने जैसे मौज़ूआत पर रहनुमाई की गई। इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस अफसर पटेल भी मौजूद थे। इस कैंप को कामयाब बनाने में असिस्टेंट टीचर रविंद्र रुकेडे, रफ़ीक शेख, शेख कनीज़, अयूब सैयद, योगेश मौरबे, रघुनाथ अंभूरे, संतोष खरात, रविंद्र भरकाड़े, गोरे अरविंद, काकड़े स्वप्निल, ताजुद्दीन शेख और जिरगे गोपाल ने अहम रोल अदा किया। अलक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए गुज़िश्ता माह उम्रा अदायगी के लिए गए 40 अफराद का काफ़िला गुज़िश्ता रोज़ वतन लौट आया। नाजरीन, अलक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स खानगी टूर कंपनियों में एक भरोसेमंद नाम समझा जाता है। इस टूर एजेंसी के ज़रिए हर माह 3 से 4 काफ़िले उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होते हैं। गुज़िश्ता माह उम्रा अदायगी के लिए सऊदी गए 40 आज़मीन का काफ़िला उम्रा और दीगर ज़ियारतें मुकम्मल करने के बाद गुज़िश्ता रोज़ वतन लौट आया। इस काफ़िले में शामिल आज़मीन ने दौरान सफ़र और उम्रा अदायगी के दौरान अलक्सा टूर्स की जानिब से उन्हें दी गई सर्विस पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए टूर ऑपरेटर वसीम शेख और उनके फर्जंदान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके लिए वहाँ रिहाइश का बेहतरीन नज़म किया गया था और रिहाइश गाह हरम शरीफ व मदीना मुनव्वरा से बहुत ही करीब थी, जहाँ उन्हें सुबह, दोपहर और शाम हिंदुस्तानी बावर्चियों के हाथों तैयार करदा लजीज खाने भी फराहम किए गए। एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने आने के लिए भी सवारियों का उम्दा इंतजाम था। उन लोगों को 24 घंटे लॉन्ड्री की सहूलत फराहम करवाई गई थी और उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो अपने वतन से हज़ारों मील दूर हैं। टूर ऑपरेटर शेख वसीम ने MCN को बताया कि आज रात एक और काफ़िला उम्रा अदायगी के लिए औरंगाबाद से मुंबई रवाना किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रजब, शाबान और रमज़ान में उम्रा अदायगी के लिए भिजवाए जाने वाले काफ़िलों की बुकिंग का सिलसिला भी जारी है। इस माह जाने वाले आज़मीन को शब मेराज हरम शरीफ में गुजारने का मौका मिलेगा, जबकि आइंदा माह सफ़र पर जाने वाले आज़मीन शब बरात की इबादतें हरम शरीफ में कर पाएंगे और रमज़ान के महीने में सफ़र पर जाने वाले आज़मीन को मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में रोज़े रखने, तरावी की अदायगी और शब क़द्र वहीं गुजारने का मौका मिलेगा। शेख वसीम के मुताबिक सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के लिए उन्हें महदूद कोटा अलाट किया है और साल रवां उनकी एजेंसी आज़मीन को फरीज़ हज की अदायगी का मौका भी फराहम करवा रही है। उन्होंने ख्वाहिशमंद बंदगान तौहीद से रजब, शाबान और मुक़द्दस माह रमज़ान के अलावा हज बुकिंग के लिए सिटी चौक इलाके में सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सामने हिल टॉप बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर मौजूद अलक्सा के दफ्तर पर राब्ता करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारी इकोनॉमी पैकेज का होटल है माशाल्लाह। और ये जो तो सामने देख सकते हैं आप बिलाल मस्जिद है, ये झाड़ के पीछे बिलाल मस्जिद है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियाजुल जन्नह में जाते हुए तमाम हुज्जाज इकराम देख सकते हैं आप माशाल्लाह। तबारक व तआला अल्लाह सभी की हाज़िरी कबूल करे और बार बार आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो आँखें ये मंज़र देख रही है अल्लाह उनको भी जन्नतुल रियाजुल जन्नह में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम, कहाँ से आप लोग? हम लोग पुणे से आए हैं। माशाल्लाह। कितने दिनों के लिए आए थे? 10 दिन के लिए आए थे। 10 दिन के लिए आए थे। कैसी सर्विस लगी आपको अलक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स की? अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज बहुत अच्छी लगी अलक्सा की। जी, आपका फ़्लाइट भी डायरेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी इंशाल्लाह आप वापसी में भी डायरेक्ट है इंशाल्लाह। खाने का नज़म कैसा है
और यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दिया गया तो वो कैसा है? खाने का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा किया गया था, होटल का स्टे भी बहुत अच्छा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में जो हमारे साथी थे करीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सब ज़ियारतें बहुत अच्छे से करवाई, सब नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कहना क्या चाहेंगे अल-अक़सा के हमारे वसीम भाई के लिए दुआएं वगैरह, और नेक्स्ट टाइम आप किसको रेफरेंस करना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम पूरे फैमिली को रेफरेंस करेंगे। अल-अक़सा बहुत अच्छी है जी, सर्विसेज भी अच्छी है जी। और सफ़ान भाई के लिए कुछ बोलिए, बहुत आपके लिए जी खासी है, जी। घर के हमारे सारे साहब भी लगते हैं वो, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खिदमत की। जी जी जी, अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता छोटे करे। मसले मसाइल आ गए थे वो हल करवा दिए उन्होंने। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी, ठीक है भाई, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह बार बार उसके दर की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की हाज़िरी आपको नसीब करे, हज की और उम्रे की सादत नसीब करे आप दोनों को भी, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ज़िला बीड़ में हुए सरपंच के कत्ल और परभनी मामलात की मजम्मत में 10 जनवरी जुमा को शहर जालना में एक मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसमें रुकन असम्बली सुरेश धस, मनोज जरांगे और दीगर शरीक रहेंगे। ये मोर्चा शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से निकाला जाएगा। मोर्चे में बड़ी तादाद में मराठा बिरादरी के लोग शामिल होंगे, जबकि मोर्चे की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से मुकम्मल कर ली गई है। शहर में सैकड़ों बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और मुंतज़मीन ने इस मोर्चे में लाखों की तादाद में शरीक होने की शहरियान से अपील की है। मोर्चे में रुकन असम्बली सुरेश धस, रुकन असम्बली बीड़ संदीप क्षीरसागर और मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतज़ामिया की सख्त कार्रवाइयों के बावजूद शहर में नायलॉन मांझे की खरीद व फरोख्त बड़े पैमाने पर जारी है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता दिनों एक और बेहता खातून ममनुआ मांझे की जद में आ गई, जिसकी वजह से उसका गला कट गया और वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई, जिसे 40 टाँके लगाने पड़े। आया रहे कि नायलून मांझे की जद में आई इस खातून का फौरी ऑपरेशन करना पड़ा है, जो कमोबेश 4 घंटे जारी रहा। इस खातून के कटे हुए गले पर 40 टाँके लगाए गए और ज़्यादा खून बह जाने के सबब उसकी हालत संगीन होने के बाद उसे खून की बोतल भी चढ़ानी पड़ी। यह हादसा शहर के मोंढा नाका फ्लाई ओवर के करीब पेश आया। मुतासिरा खातून अपने शौहर के साथ 2 व्हीलर पर जा रही थी कि मांझे की जद में आ गई। उसके शौहर ने अपने हाथ से इस मांझे को बाजू किया, ताहम पीछे बैठी उसकी बीवी मांझे की जद में आ गई और मांझा खातून के गले पर अटक गया। उसने भी मांझे को हाथ से हटाने की कोशिश की, जिसमें उसकी उंगलियां भी जख्मी हो गईं। शौहर ने गाड़ी बाजू की, रूमाल से गले को लपेटकर रिक्शा के जरिए उसे एक खानगी अस्पताल ले गया। इस हादसे के बाद शहर के अवाम शदीद मुश्तइल हैं और अब तो अवाम मुतालबा करने लगे हैं कि सिर्फ मांझे ही नहीं, पतंग उड़ाने पर ही पाबंदी लगा देनी चाहिए। और कुछ इसी तरह का मुतालबा मज़कूरा ज़ख्मी खातून ने भी किया है। दूसरी जानिब DCP संपत शिंदे ने बतलाया कि पुलिस इंतज़ामिया ने शहर में जहां भी पतंग की दुकानें हैं वहां कार्रवाई शुरू कर रखी है और इस मुतालिक अवामी बेदारी भी पैदा की जा रही है। अचानक समोरून आला ना, आधी यांच्या बोटाला कटलंय, नंतर मग तो एकदम माझ्या मानेला लागला। मी ओढायला गेले तर माझं बोट पण कटलंय, 2 बोट कटले। हेल्प केली थोडी रिक्षावाल्यांना, मग एका रिक्षावाल्याने थांबवलं आणि रिक्षातून मग आम्ही हॉस्पिटलला। कठोर कायदा केला पाहिजे। माझं जसं झालं तसं दुसऱ्यांचं नको हो। पतंग उडवणारच बंदी आणली पाहिजे। संध्याकाळी आपल्याकडे एक विजया पाटील म्हणून यंग फिमेल ऍडमिट झाल्या, ज्यांच्या की मानेला मांजा लागल्यामुळे पूर्ण मानेला असा कट बसलेला आहे आणि एकदम डीप त्यांना इंजुरी झालेली आहे। जवळजवळ 40 टाके त्यांना तिथं बसलेत। पेशंट आले तेव्हा बऱ्यापैकी गंभीर होतं, रक्ताची बॅग पण लागली त्यांना, 1 दिवस ICUत व्हेंटिलेटरवर ठेवावं लागले आणि आता त्यांची सर्जरी झालेली आहे। सध्या पेशंट स्टेबल आहे आणि पुढचे कमीत कमी आणखी 1 महिना त्यांना ट्रीटमेंटची आवश्यकता आहे। त्या नायलॉन मांजाविषयी कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, त्यावरून आम्ही आमच्या हद्दीतील सर्व पतंग आणि मांजा विक्रेते यांच्या दुकानांची आणि गोडाऊनची झडती घेतलेली आहे।
ज्या ठिकाणी मांजा मिळून आला अशा याच्यावर कारवाई केलेली आहे. शिवाय जे लहान मुलं किंवा बाकीचे ग्राउंडवर पतंग उडवतात अशा लोकांना सुद्धा चेक केलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे जर नायलॉन मांजा मिळून आला तर त्यांनी कुठून आणला याविषयी सुद्धा माहिती घेत आहोत. ज्या प्रकारे नायलॉन मांजा हा समूळ उच्चाटन होईल आणि कोणत्या कुठूनही विक्री होणार नाही याची काळजी घेत आहोत. शिवाय याचे जे दुष्परिणाम आहेत त्यासाठी जनजागृती सुद्धा पोलीस खात्यामार्फत चालू आहे आणि आमच्या पोलीस वाहनावर जे पीएस सिस्टीम आहे या पीएस सिस्टीम मार्फत आम्ही सर्व प्रभारी अधिकारी सेकंड अधिकारी या वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन त्या पीएस सिस्टीम मधून नायलॉन मांजाचे दुष्परिणाम कसे त्याचे दुष्परिणाम होतात, गळे काटणे वगैरे जखमी होणे हे प्रकार आहे. त्यामुळे कुणीही नायलॉन मांजा पतंग उड़ाने पर वापरू नए। तालुका पैठन के पाचोड़ पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले एक पुलिस मुलाजिम को कोयते से धमकाकर लुटेरों ने उसके हाथों की अंगूठियां और नकद रकम समेत 96,000 रुपये मालियत की अशिया जब्त कर ली। इस वाक़े के सबब तालुका भर में खौफ व दहशत का माहौल है। अया रहे कि लूट का इस तरह का वाक़या जब एक पुलिस वाले के साथ पेश आता हो तो आवाम में दहशत का फैलना फितरी है। लोगों में चर्चे हैं कि अब चोर उचक्के इतने बेलगाम हो गए हैं कि उन्हें खाकी वर्दी का भी खौफ नहीं रहा है, तो फिर वो आम लोगों को कहाँ किसी गिनती में लाएंगे। लूट के इस वाक़े की तफसील यूँ है कि पाचोड़ थाना में बरसरकार हेड कांस्टेबल रविंद्र अंबेकर जो कड़े ठान में बीट जमादार की हैसियत से काम कर रहे हैं, अंबेकर 7 जनवरी को यूनिफॉर्म में रहते हुए कड़े ठान के मज़ाफ़ात में विजिट करके रात के वक्त अपनी मोटरसाइकिल MH-20 FW 7068 पर सवार पाचोड़ की सिमत आ रहे थे कि पाचोड़ पैठन रोड पर अचानक उनके पीछे की सिमत से 2 मोटरसाइकिलों पर आए 4 लुटेरों ने उनके सामने मोटरसाइकिल आड़ी करके उन्हें रोक दिया और चारों अफराद ने उन्हें कोयते से खौफजदा करके उनकी सोने की अंगूठी और जेब में मौजूद रकम 30,000 रुपये और उनका आईफोन छीन लिया और फरार हो गए। अंबेकर फौरी आगे मौजूद पेट्रोल पंप पर गए और वहां जाकर सारा वाक़या बयान किया और API शरद चंद्र रोडगे को इत्तला की तो रोडगे फौरी अपना फौज फाटा लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन लुटेरे तो फरार हो चुके थे। इस वाक़े के बाद इस इलाके के लोगों में खौफ व दहशत का माहौल देखा जा रहा है, जबकि पुलिस लुटेरों को तलाश कर रही है। शहर में मौजूद मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की हदूद में गुज़िश्ता दिनों हुई 71 चोरी की वारदों का मामला हल करने में पुलिस को कामयाबी मिल गई है, जिनमें पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के साथ साथ मसरूक़ा सामान भी बरामद कर लिया, जिनकी मालियत 35 लाख रुपयों से ज़ायद है। ये मसरूक़ा सामान पुलिस कमिश्नर परवीन पवार के हाथों मुतल्लिक़ा मालिकान के सुपुर्द किया गया, जिसके सबब उनके चेहरों पर खुशी लौट आई। इस ज़मन में एक प्रोग्राम पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की खुसूसी मौजूदगी में मुनक़िद किया गया। मसरूक़ा सामान वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके कई शहरियान को जब अचानक से उनका सामान वापस लौटाया गया तो उनके चेहरे खुशी से दमक उठे और उनकी आंखें खुशी से झलक पड़ी और उन लोगों ने पुलिस अफसरान मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। ये प्रोग्राम सिडको MIDC पुलिस स्टेशन की हदूद में रखा गया। प्रोग्राम की नज़ामत सिडको MIDC पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गजानन कल्याणकर ने की। वाज़ेह है कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पेश आई 71 चोरी की वारदातों में से MIDC सिडको पुलिस स्टेशन की हदूद में 16 लाख, पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में 8,45,000, पुलिस स्टेशन सिडको की हदूद में 3,33,000, पुलिस स्टेशन जवाहर नगर की हदूद में 4,83,000, हरसुल पुलिस स्टेशन की हदूद से 1,80,000 रुपये मालियत, 51 मोटरसाइकिलें, एक फॉर्चूनर कार, 16 मोबाइल हैंडसेट, तिलाई जेवरात, सोनी कंपनी का कैमरा और दीगर अशिया शामिल थी। मुतल्लिका अफराद में पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार के हाथों से पुर्द की गई। इस मौके पर जोन 2 के DCP नितिन बगाटे, ACP सिडको सुदर्शन पाटिल, पुलिस इंस्पेक्टर गजानन कल्याणकर, पुलिस इंस्पेक्टर सुनीता मिसाड़, PI सोमनाथ जाधव, इंस्पेक्टर अशोक शिरमाड़े, इंस्पेक्टर कुंदन जाधव समेत 125 मुतासिर साकिनान मौजूद थे। पोलीस रेझिंग डेच्या निमित्त आयुक्तालयामध्ये ठिकठिकाणी आपल्याकडे जो चोरीला गेलेला माल आहे विविध गुन्ह्यांमधला तो परत करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। त्या अनुषंगाने सिडको डिव्हिजनचा जो जवळपास 35.5 लाख रुपयाचा जो मुद्देमाल होता, मोटरसायकल असू दे, दागिने असू दे, मोबाईल फोन असू दे आणि इतर जो चोरीचा गेलेला माल आहे तो आपण परत देण्याचा कार्यक्रम ठेवलेला होता।
त्या अनुषंगाने आज मुद्देमाल आपण परत देण्याची प्रक्रिया राबवलेली आहे. आणि निश्चितच या बाबतीमध्ये सविस्तर आपण आत्ताच नागरिकांना आवाहन केलं होतं की विशेषतः ज्यावेळी आपण जास्त दिवस गावी जाणार असाल तर निश्चितच आपण जास्त कॅश किंवा दागिने हे घरात ठेवायचे असेल तर आपण सुरक्षित बँकेमध्ये लॉकरमध्ये ठेवावे. त्याचबरोबर सायबर क्राईमच्या बाबतीत देखील आपण अवेअरनेस सध्या राबवत आहोत. त्या देखील आपण अलर्ट राहावेत. कुठल्या प्रकारचा OTP शेअर करू नयेत किंवा डिजिटल अरेस्ट असतील किंवा कुठल्या प्रकारचं जे प्रलोभनं दाखवले जातात त्याच्या सायबर क्राईमच्या बाबतीमध्ये किंवा अशा बाबतीमध्ये डिजिटल अरेस्ट आणि इतर कोणत्याही प्रकारच्या आमिषाला बळी न पडता कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार अशा लोकांना घाबरून जाऊन करू नये. त्या प्रकारच्या सूचना सविस्तर आपण अवेअरनेस प्रोग्राममधून देखील आता ह्या आठवड्यामध्ये राबवत आहोत आणि आज देखील या बाबतीत आपण सर्व जे या ठिकाणी मुद्देमाल परत घेण्याकरता नागरिक आलेले होते त्यांना देखील आपण सविस्तर कल्पना दिलेली आहे. मी मंदिरातून येत होते तेव्हा मंगळसूत्र ओढलं गेलं माझं. ताबडतोब आम्ही पोलीस स्टेशन जवाहरनगर पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली. त्यांनी खूप सहकार्य केलं. CCTV फुटेजने आणि सगळ्यांनी त्यांनी हे केलं आणि लोकरी सरांनी खूप जास्त सहकार्य केलं. सौगोबाचं लेणं गेलं म्हणून रडून खूप त्रास झाला मला. हो, आज परत भेटला मंगळसूत्र, आनंद झाला. माझ्या मिस्टरांनी मला गिफ्ट केली होती ही गाडी आणि मग ती गाडी आमच्याकडून 29 नोव्हेंबरला हरवल्या गेली आणि मग आम्ही इकडे येऊन कंप्लेंट वगैरे केली पण पोलिसांनी आम्हाला खूप छान मदत केली. त्या दिवशी रात्री ही गाडी हरवली होती त्याबद्दल तर त्यांनी आल्यानंतर सगळं शांतपणे व्यवस्थित आमची कंप्लेंट वगैरे नोंदवून घेतली आणि त्यांनी आम्हाला एक आधार दिला की तुमची गाडी आम्ही सापडूनच देणार. आम्ही पोलीस आहोत पण सदैव तुमच्या मदतीसाठी तत्पर आहोत, नागरिक हो. आणि मला तो आत्ता आज खूप छान अनुभव आलेला आहे. त्यांनी ज्या दिवशी मला गाडी सापडली त्या दिवशी लगेच त्यांचा फोन आला की तुमची गाडी सापडलेली आहे म्हणून. आणि मी आज खूप पोलिसांचे आभार मानते की त्यांनी एक सजग म्हणजे नागरिकांना पण सजग केलेलं आहे. डिजिटल जे आहे सायबर क्राईम वगैरे ते पण त्यांनी आज मला माहिती मिळालेली आहे आणि नागरिकांना सजग केलेलं आहे. मी पोलिसांचे खूप खूप आभारी आहे. तालुका खुलदाबाद के मज़ाफ़ात पलसवाड़ी में शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग में एक मकान का सारा साजो सामान जलकर खाक हो गया. वाज़ेह हो के मज़ाफ़ात पलसवाड़ी के साकिन रमेश ठेंगड़े के खेत पर रिहाइश पजीर राजू जनगाड़े के मकान में बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई और देखते ही देखते इस आग में सारा घर का साजो सामान, फ्रिज और बच्चे की शादी के लिए रखे 1,80,000 रुपये की मालियत का शादी के बस्ते का गट्ठा, 6 कुंटल सोयाबीन और दीगर अनाज वो 15,000 रुपये नकद रकम जलकर खाकिस्तर हो गए. राजू जनगाड़े कटलरी का कारोबार करते हैं और शादियों में साज भी बजाते हैं. इस आग में उनका कारोबार का कटलरी का 3 लाख रुपये मालियत का सामान और बजाने के साज भी जलकर खाक हो गए. आग इतनी भयानक थी कि गांव वालों की अनथक मेहनत के बावजूद भी काबू में ना आ सकी और सारा मालो असबाब जला देने के बाद ही ठंडी हुई, जिसके सबब जनगाड़े का खानदान खुले आसमान के नीचे आ गया है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तौसीए नामदिन के मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की हिदायत पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, डीन, दीगर सभी मुस्तकिल और आर्जी मुलाजमीन के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं. ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है. रहे के यूनिवर्सिटी के तौसीए नाम दिन के मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय फुलारी की तजवीज़ पर यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर, शोबा चीफ व दीगर अफसरान और मुस्तकिल मुलाजमीन व कॉन्ट्रैक्ट तर्ज के मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ खेल मुकाबलों, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, रस्सी खींच और ख़वातीन व मर्दों के संगीत कुर्सी मुकाबले मुनक़िद हुए जो 7 ta 10 जनवरी के दरमियान रखे जा रहे हैं. इन मुकाबलों के दूसरे दिन यूनिवर्सिटी मैदान पर दोपहर के सेशन में मर्द व ख़वातीन ज़ुमरों के लिए रस्सी खींच और संगीत कुर्सी मैच मुनक़िद हुए. इन खेल मुकाबलों में मुलाजिमीन अफसरान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. रस्सी खींच में 150 और संगीत कुर्सी मुकाबले में 110 अफराद ने हिस्सा लिया. टूर्नामेंट का आगाज़ वीसी फुलारी, संचालक विद्यार्थी विकास डॉक्टर श्याम अंभोरे, अकाउंट और ट्रेजरी ऑफिसर जंपावाड़, मुलाजिमीन संगठन के सदर डॉक्टर कैलाश पाथरीकर, डॉक्टर संजय कौड़े और दीगर कसीर तादाद अहम अफराद मुलाजिमीन इस मौके पर शरीक हुए. इन स्पोर्ट्स के सबब मुलाजिमीन के चेहरों पर खुशी व मसरत देखे गए. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हुकूमत इंतज़ामिया और सहाफ़ी एक गाड़ी के 2 पहिए.
हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने में सहाफ़ियों का किरदार अहम, कहा ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। शहर के सहाफ़ियों का ज़िला कलेक्टर के हाथों किया गया शायान शान इस्तकबाल। तामीरी काम करने वाले मजदूरों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन सेंटर्स, मगर एक दिन में सिर्फ 200 रजिस्ट्रेशन का मुकर्रर किया गया कोटा। इंदराजात के लिए मजदूरों को दिक्कतों का सामना, रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बढ़ाने ठोस इक़दाम की अपील। पुलिस इंतजामिया की लाख काउंसलिंग व कड़े रुख के बावजूद शहर में जोरों शोर से नायलॉन मांझों की खरीद फरोख्त है जारी। फिर एक बेहता खातून आई ममनुआ मांझे की जद में, गला कट जाने के सबब लगाने पड़े 40 टाके। शहरियान पर खौफतारी, तवज्जे का मतालिबा। और शहर में पेश आई 71 चोरी की वारदातों में मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली कामयाबी। 35 लाख रुपये से जायद मालियत का मसरूका सामान भी किया गया बरामद। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार के हाथों रिकवर्ड अशिया मुताल्लिका मालिकान के की गई सुपुर्द। सामान वापस मिल जाने की खुशी में मुताल्लिका शहरियान की आंखों से टपक पड़े आंसू। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।